Praise the Lord, my dear all. We thank God first of all for this beautiful opportunity and for this beautiful day that God has given us. And we glorify the name of the Lord as we starting this day. I would like to welcome all of you to this beautiful day to worship the Lord and start this beautiful day within His presence, worshiping Him. And I want to thank God for this beautiful opportunity that He has given us so that we can all come together through this social platform and worship the King of Kings and Lord of Lords. And I heartily want to thank Brother Joseph and Brother Sobnil for this beautiful opportunity and for this beautiful time that they have given us. And we just want to thank God above all things that He has done. Yes, it's true. When we start the day with the Lord, that day you will eventually see how God is going to turn that day into a blessing for you all. The day that is started with the Lord will always end up in a victory. A day that is started with the Lord will always end up being a great day for your life. Amen. So let us start this day with glorifying the Lord, with worshiping the Lord, and let us walk. David says in his word that better is one day in your courts than thousand elsewhere. Let us all come this one day. Let this 45 minutes be a time for us to get into the presence, to get more closer to God, to get into Him, to flow in Him. Amen. Hallelujah. 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 We thank you, Lord. Let us start the worship. Hallelujah. Before we get into the worship, I would like to introduce myself. My name is Aaron Joshua Tandi, and this is my mother, Mrs. Jolly Shilpa Tandi. This is our brother Ronnie Nair, and this is our brother Shannon Das. So basically, we are here to connect with you and become the shields of faith within the glory of the Lord, and let Jesus reign in our life forever. Amen. We are from Shahdool, Madhya Pradesh, live, and let us all worship Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Before we get into the worship, we would like to just want to tell something just from a word. Okay, let us get into the worship. Let us close our eyes and let us worship His holy name. Let us all close our eyes. Hallelujah. Let us start this day within His presence. We thank you, Jesus. We praise you. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, we praise you for you are holy, you are mighty, you are King of Kings, Lord. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Say
अपना
of our hearts. हम उसका धन्यवाद करें उन हर एक उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवन में करे हैं। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही तो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। Let us all thank you. Hallelujah. Praise Him. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Let us all thank. Lord, we give you glory, honor and praises, Lord. हाँ प्रभु, आज जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोलें और बातचीत करें। हमें से हर एक के जीवन को छू ले प्रभु। आज का हमारा आराधना करना प्रभु, महिमा करना आपको सुगंध के मानिंद भाए प्रभु, एक सुगंधित धूप के मानिंद हो प्रभु। आपकी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु। आप हमारे मध्य में विराजमान हुई प्रभु और हमें से हर एक के जीवन को छू लीजिए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मेरा वजूद भी है क्या
पिता हमसे फिर से बात कर पिता परमेश्वर, अपने कलाम के जरिए पिता परमेश्वर आज हमसे मुलाकात कर पिता। आज तू क्या कहना चाहता है पिता, हमसे कह पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरा कलाम हमसे बात करने पाए पिता। पिता हम अपने आप को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अब पिता इस प्रार्थना को यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसका महिमा करते हैं। एक सुंदर समय दिया परमेश्वर ने हमें कि हम लाइव आकर उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना कर सके, क्योंकि अभी ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम घर बैठे आराम करें। अब हमारा समय है कि हम निरंतर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है। हमारा घर में बैठना, हमारा टीवी देखना, पिक्चर देखना, घरों में समय व्यतीत करना, आज बहुत सारे लोग हैं जो घर में समय को व्यतीत कर रहे हैं। कैसे वो टाइम पास कर रहे हैं, कोई मोबाइल चलाकर, कोई किसी भी तरीके से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज जरूरत है हमें कि हम अपने समय को व्यतीत ना करें, हम अपने समय को फिजूल खर्ची में ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आना हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, निकट है। बहुत जल्दी वो आएगा, कब आएगा ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। और आज का दिन जो है, आज मेरी अंदर से हिम्मत नहीं थी कि आज के दिन में सामने आकर वर्शिप करें हम लोग और आराधना करें, क्योंकि बीते दिनों में, कल के दिन में मेरी नानी जो मेरे साथ रहती थी वो इस दुनिया से चली गई और मैं ये ख्याल में था कि मैं इस मीटिंग को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अंदर से मेरी ताकत नहीं थी कि मैं उस चीज को करूँ। लेकिन मैं प्रार्थना किया, मैं बोला परमेश्वर मेरे अंदर में भले ताकत नहीं है, लेकिन अगर तेरी सामर्थ उस जगह पे कार्य करेगी तो जरूर है कि हम तेरे काम को कर सकते हैं, हम तेरी आराधना को कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घोड़ा अपनी ताकत से युद्ध में जीत नहीं सकता, अपनी ताकत से वो हमें रेस में नहीं जिता सकता जब तक परमेश्वर की वहां पे अगुवाई नहीं होगी। अगर परमेश्वर उसमें सामर्थ्य देगा तो जरूर हम उस रेस में जीत सकते हैं। इसलिए मैंने प्रार्थना किया, नहीं परमेश्वर मैं जाऊंगा। और आइए हम केवल थोड़ी देर वचन में जाएंगे और हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर आज की सुबह हमसे क्या कहता है। मेरा आज का बैनर भी था, मैंने जो पोस्ट किया था एक, कि आज अगर हम स्टार्ट नहीं करते परमेश्वर के कलाम से, आज अगर हम सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन से नहीं करते तो अवश्य कि हम कल का दिन नहीं समाप्त कर सकते हैं। आज हमें जरूरी है कि आज का दिन रोज सुबह हमें परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से शुरुआत करने की, क्योंकि कल अगर हमें विश्राम दिन में प्रवेश करना है, अगर हमें उस विश्राम दिन में जाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है आज का दिन हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करें। आज हमें वही है, परमेश्वर हमें बताया, मैं इतने दिन से वचन पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बताया कि विश्राम दिन में हम कैसे प्रवेश करेंगे, हमें वचन से शुरुआत करें। मैं आप लोगों के सामने कुछ वचन को रखना चाहूंगा। 2 राजा उसका 6 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है। आपने देखा एलिशा और अरामी सेना के बारे में वहां लिखा है कि एलिशा परमेश्वर का एक बड़ा भक्त था, परमेश्वर के जो साथ चलता था, निरंतर उसकी अगुवाई में चलता था। परमेश्वर उसको कहता था उठ तो वो उठता था, बैठ तो बैठता था। आज हमें भी अपने जीवन में देखना है, क्या मैं भी वैसा हूँ? परमेश्वर मुझको कह रहा उठ जा, सुबह हो गई है, प्रार्थना कर, क्या मैं उठकर प्रार्थना करता हूँ? ये हमें देखना है और हमें खुद जांचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ आज। और हम देखते हैं एलिशा जो था उसको अरामी सेना ने क्या है घेर लिया था, उसको मारने के लिए आए थे कि एलिशा को हम पकड़कर राजा के सामने ले जाएंगे और राजा इसको क्या है खत्म कर देगा। आप इस चीज को पढ़े होंगे, 2 राजा उसका 8 से लिखा है, लेकिन हम 15 से देखेंगे। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। और जो भक्त का टहलुआ है और परमेश्वर का टहलुआ है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का टहलुआ। हम इसको अगर मैं अपने उसमें लूं तो कह सकते विश्वासी,
एक जो परमेश्वर के साथ में आज सभी चल रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी और एक एलीशा है वहां पे। वो क्या देखता है टहलुआ कि हम सेना से घिर चुके हैं, अरामी सेना हमको चारों तरफ से घेर लिया है, हमको चारों तरफ से जकड़ी हुई है कि अब वो बोलता, अब उसके अंदर में डर आ गया है कि आज हमको पकड़ कर राजा के हाथ में कर दिया जाएगा और हम क्या है दुनिया से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या करता है, अपने एलीशा को बताता, उसने कहा, हम देखते हैं आगे, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। एलीशा को बोलता है, स्वामी अब तो हम क्या करें, हमको घेर लिया गया है, आज हम परेशानी में पड़ गए हैं, आज हमारे सेना जो है अरामी सेना चारों तरफ से हमें घेर लिया, आज तो हमारा खात्मा हो जाएगा, आज तो हम बचेंगे नहीं। लेकिन एलीशा क्या था, एलीशा जो था, यहाँ पे हमें दो बातें देखने का मौका मिलता है कि एक बात है परमेश्वर का टहलुआ जो आज इस विश्वास में है कि परमेश्वर मुझको बचाएगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, और उसके अंदर में एक डर भी है कि अरे मेरे को सेना ने घेर लिया, आज हमारे सामने बड़ा कोरोना वायरस का संकट है, अभी तो ये शुरुआत है, हम अच्छे से जानते हैं आने वाले दिनों में इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी भूकंप आएंगे हमारे नगरों के ऊपर में। लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से वो परमेश्वर का टहलुआ जो विश्वासी भी है, हो सकता है वो विश्वासी होगा, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर अभी भी डर है कि कहीं मैं निपट ना जाऊं, कहीं मेरा कुछ हाल ना हो जाए। और वो क्या कहता है एलीशा से, अब हम क्या करें, हम बीमारियों से घिर चुके हैं, हम परेशानियों से घिर चुके हैं। लेकिन वहां पे एलीशा जो परमेश्वर के साथ वाकई में चलता था, जो निरंतर अपना सुबह उठकर वो निरंतर प्रार्थना करता था, अपना समय परमेश्वर की बातों में लगाता था, उसके अनुसार चलता था, उसने क्या कहा, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो लिखा है 16 में, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। उसने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में परमेश्वर है जो सृष्टि का करता है। क्योंकि एलीशा इस बात को जानता था, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिसके साथ चलता हूँ, वो मुझे इस परेशानी से बचा के रखेगा। लेकिन हमको देखने को मिलता परमेश्वर का टहलुआ, वहां पे बाइबल में अगर आप देखेंगे 15 में लिखा है परमेश्वर का टहलुआ, एक विश्वासी होगा शायद वो एलीशा के साथ चल रहा है, परमेश्वर का भक्त के साथ में चल रहा है, परमेश्वर के दास के साथ में चल रहा है, परमेश्वर के नबी के साथ में चल रहा है, भविष्यवक्ता के साथ में चल रहा है, वो विश्वासी होगा। लेकिन तब भी उसके अंदर में डर है। लेकिन एलीशा क्या है, एलीशा के अंदर में डर नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे को क्या है बचाएगा। आज हमारे जीवनों में भी वही हाल है। आज हम अपने जीवनों में देखें कि अगर मैं कहता हूं मैं स्पिरिचुअल हूं, अगर मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, तो क्या मैं विश्वासी किस कदर हूं कि आज भी मेरे अंदर में डर है, अरे भाई मैं निपटने वाला हूं, मौत का डर सता रहा है। परमेश्वर तो बोला मौत पे विजय मिली है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा कैसा परमेश्वर है, निरंतर हमको संभाल के रखता है और हमें बचा के रखता है। आज जरूरत है मेरे भाई और बहनों, अगर आप लाइव देख रहे हैं, इन बातों को सोचिए। इन बातों से दो बातें हमें सीखने को मिलता है। वो परमेश्वर का टहलुआ जो शायद विश्वासी भी है, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के साथ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में एक डर है कि अब मैं क्या करूँ, वहां क्वेश्चन मार्क लगा, क्या करूँ, मेरा क्या होगा, अंदर से डर है, मैं क्या खाऊंगा, मेरी जॉब बंद हो गई है। आज हमारे जीवनों में ये हाल है, सेवकाई बंद हो गई है, सारी चीजें आज बंद हो चुकी है, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बड़ा परेशानी है, बड़ा अंदर से डर है, परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा। लेकिन वहां पे एलीशा जो परमेश्वर के साथ चल रहा, वो क्या कह रहा है, मुझे डर नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ठान चुका है दुनिया का अंत तो होगा। हम चाहे माने इस बात को ना माने, हम चाहे बोले अरे नहीं होगा भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल जिस बात को बता रही वो तो होकर रहेगा और वो ठान चुका है। लेकिन हमारी क्या है तैयारी। आज हमारा बैनर भी ये था, आज अगर हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में समय देकर, फिजूल बातों में हमारा ध्यान लगा हुआ है, फिजूल का जीवन हम जी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए विश्राम दिन में कतई हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो परमेश्वर का जन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना स्पिरिचुअल हो, कोई मतलब नहीं रखता। परमेश्वर कह रहा आज अगर हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आज अगर हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की बातों में समय नहीं बिता रहे, यकीन मानिए हम उस विश्राम दिन में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। पौलुस कहता है प्रतिदिन अपने आप को मार। हम लाइव आते हैं, कभी कभार आते हैं, हम उस दिन बड़ा प्रार्थना करते, रात भर प्रार्थना करते, परमेश्वर सुबह जाना है लाइव, लेकिन बाकी दिनों में 6 दिन में क्या हुआ, 7 दिन में क्या हुआ, बाकी दिन हमारे सब ऐसे खाली चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है परमेश्वर हमको स्वर्ग में एंट्री दे देगा? बहुत मुश्किल। मुश्किल क्या नहीं है, क्योंकि हम इन बातों से अनजान ना रहे। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा मेरे अज्ञान वचन के अज्ञानता के कारण क्या नष्ट हुए जा रही है। आज एक सोचने वाली बात है, आप लोग आज घर में जरूर इन बातों को सोचिए जो लाइव देख रहे हैं, कि कौन से वाले हम विश्वासी हैं। वो परमेश्वर का टहलुए वाला जो एलिशा के साथ में चल रहा था, या एलिशा वाला। 2 चीज है, 2 जन है यहाँ पे, 2 जन के बारे में बताया है। और आज हम कह रहे परमेश्वर मेरे को बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। क्या बचाएगा? वो मुश्किल है भैया, बचाता है कि नहीं बचाता है। मैं इन बातों से यहाँ पे समाप्त करूंगा, लेकिन आपको मैं इन बातों से ये बताना चाहता हूँ कि हमें आज जरूरत है कि हम उस विश्राम दिन में तभी प्रवेश करने पाएंगे जब आज हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर की बातों से। हम बोलते हैं हम क्या बदलाव करें अपने अंदर। परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दिया है, इसको पढ़िए, इसमें लिखा है किस प्रकार से हम अपने जीवनों में रोज बदलाव करें। पौलुस भी कह रहा प्रतिदिन। हम लगता है उस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते संडे को, मंगलवार को, बुधवार को परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जीवन बदल जाएगा, बस हो गया, इतना ही है। हम इस भूल में पड़े हैं, उस शब्द को पढ़े। प्रतिदिन कह रहा, प्रतिदिन अपने क्रूज को उठाना है। अभी हम बंदूकी दूसरे के कंधे पे रख के चलाते हैं। पास्टर प्रार्थना कर देगा, हमको क्या जरूरत, हम तो बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं बाइबल में बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। शिमशोन भी रहा, तब भी वो क्या हालत हो गई थी उसकी। इसलिए जरूरत है आज अपने आप को आप जांचिए और अपने आप को परखिए कि हम कहाँ पे हैं। मैं एलिशा जैसा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मैं सच में विश्वासी हूँ, कि मैं केवल नॉर्मल वाला हूँ जो डर रहा है। जो डर रहा है वो वाकई में नहीं बचेगा, लेकिन जो परमेश्वर की बातों पे चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निरंतर अपने जीवन को बदल रहा है, अभिलाषाओं को, संसारिक इच्छा को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, वो ही आज बचाया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और हम अपने घरों में भी होंगे, हम आप लाइव देख रहे होंगे हर जगह से। हम इन बातों को जरूर एक बार सोचे, क्या है विश्वास आज हमारा, कहाँ पे आज हम जी रहे हैं। अगर आज हमारे अंदर में डर है, आज हमें ये नहीं पता मेरा परमेश्वर, एलिशा भी उसी परमेश्वर को मान रहा है जिस परमेश्वर को उसका जन मान रहा है, जो उसका चेला है उसी बातों को, वही परमेश्वर को मान रहा है। आज हमारे जीवन में भी यही बातें हैं। आज हम भी उसी परमेश्वर को मान रहे हैं और हमारे लोग भी उसी परमेश्वर को मान रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर किसी भी हाल में मेरी सुरक्षा करेगा। मैं नहीं जानता मेरे देश में, मेरे नगर में क्या विपत्ति आई है, क्या परेशानी आएगी, इसके बाद में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे बचा के रखेगा। क्या आपको पता है आपका परमेश्वर आपको बचाएगा? क्या आपको विश्वास है? आपको डर है अभी भी कि नहीं, मेरे को डर है कहीं मैं इसमें खत्म ना हो जाऊं। घोड़ा रेस में दौड़ता जरूर है, लेकिन जब तक परमेश्वर के सामर्थ, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता वो नहीं जीतता। आप इस बात को बाइबल में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब तक हम परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, हम उसके समीप अपने आप को नहीं देंगे, हम पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा भी विश्राम दिन में प्रवेश करना असंभव है। असंभव है, बिल्कुल हम प्रवेश नहीं कर सकते। आप इन बातों को मानिए या नहीं मानते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है हम प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल नहीं प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर कहता है स्वर्ग में सोने की सड़क है। आज भी बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, वहां जाके थूकेंगे तो वो सोने की सड़क गंदी हो जाएगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी नहीं देगा। आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बदलिए, बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपे। आप जहाँ बैठे हैं अपने मन में सोच लीजिए, नहीं परमेश्वर, मैं इन बातों को जानता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आज अपने जीवन को तेरे लिए देना चाहता हूँ पिता। पिता परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मुझे अधिकार दे पिता परमेश्वर। पिता मेरे जीवन में तेरा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे को विश्राम दिन में प्रवेश करना है पिता, मैं प्रवेश करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, we praise and we worship Lord. अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। फिर से अद्भुत है परमेश्वर, हम बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता तेरा क्रूस का प्रेम अद्भुत है पिता, तेरा वो प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। हमको ले चल पिता परमेश्वर, अपने पास ले चल पिता परमेश्वर। Oh yes, we praise and we worship Lord पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता हमें सिखाया पिता परमेश्वर, आज हमें जाना है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु ने दे जान
आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और तारीफ करते हैं। यीशु के लहू के वसीले से आज हम आपके पाक और पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब जब हम आपका कलाम खोलते हैं प्रभु, एक जीवित आशा हमारे लिए हमेशा है प्रभु। ओ प्रभु, आपने हमें कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ प्रभु, हम जब जब आपकी ओर देखते हैं प्रभु, जब जब आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, हर एक भय प्रभु हमारी जीवनों से चला जाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जिस प्रकार प्रभु, ओ प्रभु, जो एलिशा के साथ प्रभु जो सेवक था वो डरने लगा प्रभु, जब आरामी की सेना को देखा प्रभु। ओ प्रभु, होने दे प्रभु कि हमारा विश्वास गेजी की नाई ना हो प्रभु, वरन उसकी नाई हो प्रभु। हमेशा तुझे देखता है और तुझ पर उसका विश्वास अडिग है प्रभु। जिस तरह एलिशा ने प्रभु ये प्रार्थना की कि हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके। होने दे प्रभु, आज लोग जान सके प्रभु कि प्रभु जो आपकी शरण में है प्रभु, जो आपके कदमों में है प्रभु, उसे किसी प्रकार का भय नहीं प्रभु, उसे किसी प्रकार का डर नहीं है प्रभु। और जिस उसने वो उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। ओ अपने वचन के भेदों को खोलने के लिए प्रभु, फिर से हमें स्मरण दिलाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए प्रभु, आपकी करुणा हम पर से कभी नहीं टलेगी और कभी नहीं हटेगी प्रभु, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ प्रभु, हर समय हर पल हमारा जीवन आपके कदमों में हो प्रभु, और हम आपको निहारे और आपकी उपस्थिति में बने रहे प्रभु। सब बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। हर एक लाइव देखने वाले लोगों को प्रभु आप आशीषित करिए प्रभु, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करिए प्रभु। आज का ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक कोई अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेके जाने पाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती इस मधुर समय के लिए, इस कीमती समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके नाम को महिमा और यश और जलाल देते हुए ये विनती और प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। We thank you all for coming live, and we especially thanks to the Rehai group and Swapnil and Joseph, and we glorify the name of the Lord. Let us all learn from the word that God has given us and move forward in this day. And eventually when you will walk with the Lord, you will see the victory coming on your way. Amen. Hallelujah. See you all next time. Thank you. Bye. Praise the Lord.